So now let us be ready for the asanas. Second day, same asanas we repeat. First is Vyagrasana we did. So as I showed you, those who want to use the chair, they can use the chair support. If you have not much of knee pain, you can use a towel below the knees also for Vajrasana. So let us go to the cat pose first, Marjarasana, and then from there we will go to Vyagrasana, also called as Marjarasana E. So gently you can sit in Vajrasana. Sitting in Vajrasana. Now take the forward distance and now come up. Spread the hands apart. Stretch the right leg back. Come to C position and now fold the leg from behind. Look up. Maintain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Open the eyes, head down, leg straight, then bring it down, bring the leg forward, left leg back, raise the leg up to C position, bend at the knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly legs down, head down. Come to Vajrasana. Relax in Vajrasana or Sukhasana. See that your breathing is very normal in this posture. Do not hold your breath when you stretch the leg. One more mistake which we tend to do is to bend the hands at the elbows. हाथ ऐसे हो जाते हैं. To see that the hands are straight, only the leg is moved. Other parts of the body are completely relaxed. Okay, close your eyes. Very nice stretch on the gluteal muscles and the leg muscles. It strengthens the lower body and tones up the legs. So अभी हम सेकेंड राउंड करते हैं इसी प्रैक्टिस का, व्याघ्रासन का. सेकेंड राउंड के लिए फिर से तैयार हो जाइए. आप ऑलरेडी वज्रासन में हो, जो नहीं है they can come from Sukhasana to Vajrasana. Take the distance. Come. This is the proper distance. Now right leg को stretch किया, raise it up, bend at the knee. Try to keep the leg more and more up and head up. Maintain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly leg straight down. Bring it down. Left leg stretched up. Raise it up and raise the head up. Try to bend the leg at the knee and look up. 1, 2. Raise your thigh up. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leg straight. Head down, leg down. Relax. और अब अपने आसन को भी रिलीज करें, वज्रासन को भी रिलीज करेंगे एंड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. Keep your eyes closed, relax. Okay, so now let's be ready for the standing practice. तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए. Stand in your place. Same practices today we are repeating. अर्ध कटी चक्रासन जो हमने किया था, कटी रीजन के लिए, वेस्ट के लिए, you have to do the nice bending. तो इनको बैलेंस नहीं है, जिनको वर्टिगो इश्यूज है या कुछ हाई बीपी है, पैरों में थोड़ा अंतर रख सकते हैं. जिनको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, पैरों को जोड़ सकते हैं. नाउ स्ट्रेच द राइट हैंड टू द शोल्डर लेवल. टर्न द पाम अपवर्ड्स एंड स्ट्रेच अप. हाथ को और ऊपर ताने और हो सके तो अपर आर्म और कान को टच करके रखें और ऐसे ही नीचे बेंड करेंगे बाईं ओर. अब देखो बाएं हाथ को धीरा रखें, सिर को ड्रॉप डाउन करें बाएं तरफ और hand is sticking to the ear. Don't tilt forward. Maintain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly straighten up. Hand down. Bring the palm downwards and relax. Close your eyes. Relax for a while. Feel a nice stretch on the entire right side and there was relaxation on the left side. अब इसी का रिवर्स करेंगे. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस है. लेफ्ट हैंड स्ट्रेच्ड अप शोल्डर लेवल, पाम टर्न अप, स्ट्रेच अप. यहाँ पे अपर आर्म को कान को टच करो और हाथ को ऊपर खींचे और दाहिनी ओर झुक जाएंगे. दाहिने हाथ को ढीला रखें. हेड ड्रॉप डाउन. डोंट टिल्ट बैकवर्ड्स. सांसों को लेते रहिए. 1, 2, 3, 4,
स्थिति में खड़ी रहिए. रिलैक्स योरसेल्फ. So that was a very nice practice which helps to strengthen your side muscles, tone up the muscles of the oblique muscles, improves the functioning of your kidneys also, and it is giving a nice expansion to the lungs. So lungs की capacity इससे बढ़ती है. So we know it is strengthening your shoulder joint, especially it is making it flexible. Or the main benefit of Ardha Kati Chakrasana is lateral bending of the spine. जो spine right दाहिनी ओर और बाईं ओर हम कभी मोड़ते नहीं हैं, उस तरह से उसका झुकाव वैसे होता है तो बैक मसल्स और भी रीइंफोर्स होते हैं. So let us do one more round of this practice of Ardha Kati Chakrasana. Again, right hand stretched up, turn the palm up. अच्छी तरह से स्ट्रेच करो ऊपर और राइट साइड लेफ्ट साइड में झुक जाए. Bend down to your left side. See that you are not tilting forward. You are looking back and keeping the lateral movement of your spine. Maintain. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly straighten up. Bring the hand to shoulder level. Turn the palm down. Relax. And now left hand shoulder level. Turn the palm upward. Stretch up. Upper arm ear touch and bend down to the right side. Now relax the right side completely. Tilt is not towards the right. Bend backwards. Lean backwards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Straighten up. Hand shoulder level and relax. So sit down and I will explain. गलती इसमें ये हो जाती है कि जैसे ही आप ऊपर ले जाते हो झुकते हो तो हाथ को ऐसे करते हो. तो द हैंड हैज टू बी स्ट्रेट. सी दैट द हैंड इज नॉट बेंड एट द एल्बो. इस तरह से आएगा तो स्ट्रेच नहीं आएगा. सो अपर हैंड इज कम्प्लीटली स्ट्रेट एट द एल्बो. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू टच द ईयर, नो इशू, बट सी दैट द हैंड इज स्ट्रेट. ओके. और जो जिस तरफ आप झुक रहे हो वहाँ पर ग्रेविटी का असर को फील करें. यू कैन फील द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दैट साइड. सपोजिंग आपने लेफ्ट साइड झुके हैं, so you feel the left hand is being pulled more and more downwards. So that is the benefit. If you are doing it that way, feel it that way, then you are getting the benefit of Ardha Kati Chakrasana. Okay. So now you can release and lie on your abdomen. पेट के बल हम लेट जाएंगे. हमने ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड भुजंगासन सीखा है. So relax in सुलभ मकरासन. Relax for a while. जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है पीठ में तो वो इस प्रकार सिंपल फोरआर्म्स को रख के ऐसे भी कर सकते हैं. सुलभ भुजंगासन. पीठ का दर्द है तो सुलभ भुजंगासन करो. जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो स्टैंडर्ड भुजंगासन करेंगे. इस तरह से माथा मैट पे रखें. दोनों पार्ट्स को चेस्ट के बाजू में रखना है. धीरे धीरे पीठ के बल पर आपको सिर उठाना है. थोड़ा सा चेस्ट उठाएंगे, थोड़ा अपर एब्डोमेन उठाएंगे और फिर हाथों को भी मैट से ऊपर उठाए. लुक अप. एल्बोज आर नॉट स्प्रेडिंग आउट. एल्बोज आर क्लोजर टू द बॉडी. फील द प्रेशर ऑन योर नेवल रीजन. और ऊपर उठे पैरों को रिलैक्स रखिए, जोड़ के रखिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Palms down, come down and relax in Makarasana. See that you are not holding the breath. And there will be some pain in the middle back, the thoracic vertebrae, but that is essential because it is working on your upper back muscles. तो भुजंगासन का मेन इस तरह का भुजंगासन आपकी अपर बैक मसल्स को अच्छी तरह से टोन अप करता है. It also gives a nice shape to the upper back and it also strengthens your neck muscles. So इसलिए इस प्रकार का भुजंगासन कोशिश करें, रिलैक्स करें और सांसों को सहज लेते रहना है. Another benefit is because आप ज़्यादा प्रेशर पेट पर आ रहा है तो पेट पर एक अच्छा मसाज होता है. आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है और साथ ही साथ टमी फैट भी इससे कम होता है. ओके. तो पैरों को जोड़े रखना और पैरों को रिलैक्स रखना इम्पॉर्टेंट है इस आसन में. एंड ट्राई टू लिफ्ट योर पाम्स अबव द मैट सो दैट यू आर नॉट यूजिंग प्रेशर ऑफ योर पाम्स और यू आर नॉट यूजिंग योर हैंड्स टू लिफ्ट योर अपर बैक. हमको अपने अपर बैक को स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए हाथों का इस्तेमाल नहीं करना. So let's do the second round. Palms by the side of the chest. जिनको सुलभ करना है सुलभ कर सकते हैं.
पैरों को ढीला रखिए, धीरे धीरे सिर को उठाए, पीठ को, नेक को उठाए, पीठ को उठाए, अपर बैक को. Try to come to what position you want to, and now lift your hands up. The palms are above the mat, the legs are closer. Look up. Feel the pressure on the navel region. Breathe normal. Try to come up more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly palms down, forehead down, and relax. विश्राम करें. Try to enjoy the benefits and the backward arch of the spine in Bhujangasana. और एक करवट पे आके आप पीठ के बल लेट जाइए. Lie on your back now. Relax on your back. Okay, so join the legs together, hands by the side of the body. So now we will be going for the supine position asana. We were doing Uthita Dvipadasana. As we know, उठित में उठना, द्वि मतलब दो, पाद मतलब पैर, दोनों पैरों को उठाना है जमीन से. तो इसके लिए जो बिगिनर्स है या जिनको बैक पेन है, हाथों को कमर के नीचे रखेंगे इस तरह से, and get a good support to raise the legs to 60 degree. और जो लोगों को कुछ तकलीफ नहीं है, spine is healthy and you want to get faster reduction, टमी फैट को जल्दी कम करना है, तो आप हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे. So those who are regular practitioners and no back pain, you can do this hands up. Let's start with the Dvipadasana. तो धीरे से दोनों पैरों को जोड़ के अब अपर बॉडी को रिलैक्स रखो, सिर्फ हाथ तने हुए हैं, और फिर आप दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ 60 डिग्री. ओके, एंड मेंटेन. लुक एट योर टोज, क्लोज योर आईज, कीप द नीज स्ट्रेट, मेंटेन नॉर्मल ब्रीदिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly release the legs down and bring your hands by the side of the body. So भुजंगासन में हमने जैसे अपर बैक पर वर्क किया था, बैकवर्ड आर्चिंग, इसमें हम स्पाइन को फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं और खास करके लोअर बैक. So it's like a complementary practice and it is very helpful for improving the strength and the flexibility of your spine. लंबार प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे दूर होते हैं. साइटिका नर्व पेन के लिए अच्छी प्रैक्टिस है, पर जिनको बहुत ज़्यादा पेन है, एक एक पैर को भी उठाए. आप एक पैर को उठाए, एक पैर को ज़मीन पर रख सकते हैं. Those who have slip disc also, they should do one leg up. And see that the gravity is acting on your legs, but you are trying to resist it. आपको लगता है कि हमें पैरों को नीचे रखना है, but try to resist. गुरुत्वाकर्षण से पैर नीचे खींचे जाते हैं, आपको रुकना है. इससे क्या होगा, आपके पेट के मसल्स अच्छी तरह से टोन्ड अप रहेंगे. So improve the tone of your muscles. Very nice practice and improves your digestive system and excretory system functions. So हमें बेनिफिट समझ लिया है. अपर बॉडी को रिलैक्स रखना है, सांसों को लेते रहना है. So again whatever way आपको हाथों को कैसे रखना है वैसे रखिए. सेकेंड राउंड करेंगे. See that the breathing is very natural. Ready? Join the legs together. दोनों पैरों को 60 डिग्री, not 90, 60, और मेंटेन करो. 1, 2, knee straight, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly come down. So you can feel that nice trembling on the abdomen muscles. एक कंपन आपको अपने पेट के मसल्स पर आएगा, मतलब आपने आसन सही किया. रिलैक्स. कुछ देर के लिए ऐसे ही लेटे रहे. I will recap for you all the practices so that आपका विश्राम भी हो जाएगा. लेटे लेटे हमने जो आसन किए उसको रिवाइज करते हैं. कैट पोज में मार्जरासन का ई पोजीशन किया, दैट इज व्याघ्रासन किया हमने.
फिर खड़े होके अर्धकटी चक्रासन, फिर पेट के बल हमने स्टैंडर्ड भुजंगासन सीखा है और पीठ के बल उत्थित द्विपादासन। ओके, सो नाउ स्ट्रेच योरसेल्फ और अपनी जगह पर बैठ जाइए। ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए धीरे से आप आराम से बैठ जाइए सुखासन में। हैंड्स इन ध्यान मुद्रा, आईज क्लोज्ड, रिलैक्स योरसेल्फ, फील योर ब्रीदिंग। अब अपना पूरा ध्यान सांसों पर है, शरीर स्थिर है, सांसें सहज है। इतने आसनों के बाद तो हम तैयार है श्वसन मार्ग शुद्धि के लिए। कीप अ टॉवेल इन फ्रंट ऑफ यू, राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Keep the hand down, clean the nose. Now right nostril, left nostril closed, right breathe out. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clean the nose. Now breathe out with both the nostrils. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जैसे नाक को साफ करें। Relax yourself, relax your legs. Move on for the next practice, and that is the practice of कपालभाति। सुखासन में बैठ जाइए। श्वसन मार्ग शुद्धि के बाद अब कपालभाति हम रेगुलरली करते हैं। लेट अस डू 120 स्ट्रोक्स, पर ये कंपल्सरी नहीं है। जिनको लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं वो बीच में रुक सकते हैं। ओके, हैंड्स इन द्रोण मुद्रा, चेस्ट फिक्स। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 70. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 80. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. आंखों को बंद ही रखो और अपने आसन को रिलीज कर दीजिए। वेरी गुड। 120 strokes. Try to enjoy the benefits and the effects of Kapalbhati. Open your eyes gently. Okay. So now we will move on for Vastrika Pranayam, sitting Vajrasan. Back straight. Okay. So we go for first round of 10 strokes, hands by the side. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9,
वज्रासन, those who can, अदरवाइज सुखासन में भी बैठ सकते हैं। The next round is again 15 strokes and that we will do together. So you know, so I am not counting for you. Hands by the side. Start. रिलैक्स। आंखों को बंद ही रखो, अपने आसन को रिलीज कर सकते हैं, विश्राम करें। Now open your eyes gently. Let us sit in Sukhasana again. Okay. So today we will do a pranayam which is cooling pranayam, Chandra Vedan pranayam. Okay. Hands in ध्यान मुद्रा। अभी आपको चंद्र वेदन प्राणायाम के लिए राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, हाथ को ढीला रखना है, लेफ्ट से सांस ले, लेफ्ट दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके गर्दन को नीचे झुकाए, पेट को अंदर खींचे, थोड़ा सा सांस को अंदर ही रोके, फिर गर्दन सीधी करें और राइट नॉस्ट्रिल को खोल के सांस को बाहर निकालें। अब राइट को बंद कर दो, राइट से सांस नहीं लेना है। इस प्राणायाम में सिर्फ लेफ्ट से सांस लेना, होल्ड करना और राइट से सांस छोड़ना। फिर से राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लो, होल्ड, राइट से सांस को छोड़ो। तो ये ध्यान में रखो कि आप राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन नहीं करेंगे, वो अनुलोम विलोम हो जाएगा फिर। ओके, तो चंद्र वेदन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऐसे है। लेट्स डू 3 राउंड्स। ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, hold the breath inside by closing both the nostrils, do the chin lock, do the abdomen lock, chin lock, release, open the right, breathe out longer, again close the right, left, breathe in, close both the nostrils, chin lock, slightly tuck the abdomen in, hold the breath inside, चिन लॉक को रिलीज करें, राइट को खोले, सांस बाहर, धीरे धीरे। लास्ट राउंड, राइट क्लोज, लेफ्ट से सांस ले, दोनों नाखूनों को बंद करके गर्दन नीचे झुकाए, जरा सा नाभि वाला हिस्सा अंदर खींचे, सांस को अंदर रोकना है, गर्दन सीधी और दाहिने से सांस को बाहर निकालो, हाथ नीचे। So we did total 4 rounds. You can do more rounds because now this is a season where your lot of heat is there. So गर्माहट को दूर करने के लिए और साथ ही साथ जिनको भी हाई बीपी है, स्ट्रेस है, बहुत पसीना आता है, उन्होंने इस प्राणायाम को, चंद्र वेदन प्राणायाम को रेगुलरली करना है। Close your eyes and relax. So friends, let us go for the relaxing pranayams now. हाथों को पद्म मुद्रा में रखेंगे, भ्रामरी 3 बार करते हैं और उसके बाद 3 बार ओमकार। आंखों को बंद ही रखना है। आफ्टर 3 वी विल नॉट ओपन द आईज। सो लेट्स डू द भ्रामरी चैंट 3 टाइम्स। Closed and hands in Dhyan Mudra. Be with the vibrations of Brahmari. दोनों बाहों के बीच में ओम को देखने की कोशिश करें, मानसिक ओमकार, और हम ओम को 3 बार चैंट करेंगे, उच्चारेंगे। लंबी गहरी सांस ले, पहला ओमकार ऊंची आवाज में, ओम।
दूसरा ओंकार मध्यमा वाणी में रिलैक्स। तीसरा ओंकार धीमी वाणी में रिलैक्स। फील द वाइब्रेशंस। आंखों को बंद ही रखो और दोनों हाथों को रख कर अपने चेहरे को हल्का मसाज कीजिए। फिर से हाथों को रख करें और पूरे शरीर पर हाथों को घुमाएं। एक बार और हाथों को मलना है और अपने चेहरे पर रखिए। हाथों को देखते देखते फिर आंखों को खोलें। Okay, friends, so we end our session over here. Thank you all. Have a nice day. Have a lovely day. Bye bye.